Hello, all my dear students. A precious good morning to all of you. Welcome in today's class, and today we are going to discuss about the adaptation for cross pollination. Because of it's a too humid condition, I'm just making a short videos of just 15 to 20 minutes. And when there will be normal weather condition, I will make once again a video of at least 30 or 35 or 40 minutes. So in today's topic, we will just discuss about the adaptation for cross pollination. Important thing, you all have to just like the video, subscribe the channel, and also share this video with your friends also. As well as you can also comment in the comment box what you want and what betterment can be done for your proper understanding purposes. So let's start. What adaptation for cross pollination. So in adaptation for cross pollination, we will discuss at least what 7 points. In that we will discuss what dicliny or unisexuality, as well as we will also discuss about dichogamy, heterostyly, hercogamy, self-incompatibility. So all these points will be discussed one by one. So first, and as you know that in previous topic we have discussed about the adaptation of self pollination. तो पहला पॉइंट बेटा जो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं that is what dicliny, or we can just write here unisexuality. As we discussed when we were defining the cross pollination, that for cross pollination flower should be unisexual. यानी फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, वो या तो स्टेमिनेट होना चाहिए या तो पिस्टिलेट होना चाहिए. तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ एक टेक्निकल टर्म दिया है, दैट इज व्हाट डाइक्लिनी. सो डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी, इट मींस दैट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर शुड बी unisexual. It means that वो क्या होना चाहिए, having stamen, या तो उसके पास stamen हो तो उसे हम क्या कहेंगे, staminate, और having pistil. In this condition we will discuss what pistillate. So unisexuality or dicliny means that flower have just only one type of reproductive unit, that may be male reproductive unit or it may be female reproductive unit. If it has male reproductive unit, flower should be considered as staminate flower, and if this have only female reproductive unit, flower will be considered as a what pistillate flower. भाई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. इन एग्जाम्पल में वी कंसीडर पपाया, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, पपाया एज वेल एज डेट पाम, एंड वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ मलबेरी, वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैस्टर एंड मैनी मोर. सो डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया पपाया, डेट पाम, मलबेरी का, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इसको डाइक्लिनी को. लेट्स कंसीडर सेकंड वन इज व्हाट डाइकोगैमी. In adaptation for self pollination we have discussed about the homogamy. So in homogamy actually both male and female reproductive organs were developing at the same time, but here in the case of dichogamy, male and female reproductive organs will be developed at different intervals or at different time. यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग समय पे डेवलप होने वाले हैं. So dichogamy is what condition where male and female reproductive organs develops at different
टाइम इंटरवल, यानी यहाँ पे बेटा किसमें डाइकोगैमी होमोगैमी का जस्ट रिवर्स है या वाइस वर्सा है। वहां पे क्या था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो रहे थे, सेम टाइम डेवलप हो रहे थे, इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन था। यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी, और ये फेवर करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। Here there may be two possibilities. If the male reproductive organs are going to develop first, that condition is known as protandrous condition, and if female reproductive organs are going to develop first, that condition is known as what, protogyny condition। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट protandrous condition, or we can write protandry, what we can write protandry। What is this? Here stamen develops earlier than कार्पेल, यानी कार्पेल से पहले कौन डेवलप हो जाता है, स्टामेन डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल वी विल कंसीडर हियर कॉटन, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओकरा, जिसे आप कह सकते हो लेडीज फिंगर, और साल्विया, और वी कैन ऑल्सो राइट और मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली, कौन से फैमिली के मेंबर्स, लैमिएसी एंड मालवेसी। तो बेटा आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट, प्रोटैंड्रस कंडीशन और protandry simply suggests that here the male reproductive unit, that is stamen, is going to develop first, and this may seen in the family Lamiaceae और we can say that Malvaceae। अगर आपसे फैमिली पूछी जाएगी तो आप किसको, Lamiaceae और Malvaceae का एग्जांपल देंगे। अगर आपसे प्लांट का एग्जांपल पूछेगा तो कॉटन है, ओकरा है और साल्विया। यहाँ पे आप लेडीज फिंगर भी लिख सकते हो। तो ये पहली कंडीशन थी कहाँ, डाइकोगैमी में, जहाँ डेवलप हो रहा था कौन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप हो रहा था। लेट्स कंसीडर सेकंड कंडीशन इन बी पॉइंट, दैट इज व्हाट, प्रोटोगायनी। अभी तक बेटा हमने क्या देखा, प्रोटैंड्री देखी, अब क्या देखेंगे, प्रोटोगायनी। सिंपल है, एयर कार्पेल डेवलप्स बिफोर dehiscence of anther। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रोटोगायनी कंडीशन में कार्पेल डेवलप हो जाती है, एंथर के डेhiscence से पहले तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज नहीं हुए होते हैं, उससे पहले ही क्या डेवलप हो जा रही है, कार्पेल डेवलप हो जा रही है। हम कह सकते हैं हियर वी कैन राइट सेकंड पॉइंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप्स फर्स्ट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। एग्जांपल में आप लेंगे माइकेलिया, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है माइकेलिया। वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ राइननकुलस, सॉरी ये डबल है, राइननकुलस and Michelia ranunculus। So all these are the examples that represent protogyny. Let's consider a few more examples. That is what, Mirabilis jalpa and Magnolia। So Michelia ranunculus, Mirabilis jalpa and Magnolia, all these just simply representing प्रोटोगायनी कंडीशन। वहां पे क्या हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पहले डेवलप हो रही है। तो बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, डाइक्लेनी और यूनिसेक्सुअलिटी, यानी प्लांट के पास या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा। उस कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया था, पपाया, डेट पाम, मलबेरी और कैस्टर। दूसरा हमने क्या देखा, डाइकोगैमी, जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग टाइम पे डेवलप हो रहे थे। दो कंडीशन थी, पहला प्रोटैंड्री, जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप कर रहा था, दूसरा प्रोटोगायनी, जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कर रहा है, पहले डेवलप हो जा रहा है। सो जब अलग अलग टाइम पे डेवलपमेंट होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का, तो चांसेस जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के वो क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को वो फेवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्विकली डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट, सेल्फ स्टेरिलिटी। ये बेटा क्या कंडीशन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन है। हियर pollen grains are not able to do or perform what fertilization process. So here pollen grains are not able to do fertilization. ठीक है, यानी यहाँ पे pollen grains जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल आपका है मेज, टोमेटो, we can take the example of sunflower. So all these are the example of what self sterility means that वहां पे क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं वो, ठीक है। वहां पे pollen grains क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं होती है, किसकी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो क्या करें, फर्टिलाइजेशन को कैरी करें। A few more example, we can take the example of barley and carrot, अब लगा देते हैं etc, ठीक है। So here pollen grains are not able to do fertilization, or in simple words we can also write pollen grains are incapable of fertilization। दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, pollen grains are incapable of fertilization और pollen grains are not able to do fertilization। एग्जाम्पल है maize, tomato, sunflower, barley और carrot। Let's consider fourth point. Let's consider next fourth, that is what hercogamy. In hercogamy there is a presence of a physical barrier. A physical barrier is present between stigma and anther of same plant। यानी बेटा हर्कोगेमी में क्या होता है, फिजिकल बैरियर की प्रेजेंस होती है स्टिग्मा और आपकी स्टेमन के बीच में, जिससे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के फॉल नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल इन कैलोट्रोपिस एंड orchids, pollen grains are bounded in special structure pollinin। यानी बेटा आप देखें कैलोट्रोपिस में, तो यहाँ पे कैलोट्रोपिस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक स्पेशल बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, जिससे वो लैंड नहीं कर पाते स्टिग्मा के सेम फ्लावर में। और बाद में जब वो क्या करते हैं, किसी भी एजेंसी के द्वारा बाहर कैरी किए जाते हैं, तो जिस सैक में वो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर वहां पे पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होते हैं। कुछ इस तरह से होता है। लेट्स सी बाय मींस ऑफ अ डायग्राम। So now pollen grains will be formed here। यहाँ पे pollen grains बनने वाले हैं, और चूंकि pollen grains कहाँ बन रहे हैं बेटा, अंदर बन रहे हैं, इस वजह से ये लैंड नहीं कर पाते हैं कहाँ, स्टिग्मा पे, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनिन। ठीक है, तो इसी पॉलिनिन के अंदर pollen grains क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, और जब एजेंसी इनको मिलती है फिर ये आगे कैरी हो जाते हैं, और ये पॉलिनिन फिर क्या होती है, डिसॉल्व, और ये पॉलन ग्रेन्स क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये फेवर करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनिन। और इट कैन बी आल्सो रिटन एज पॉलिनिया। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा बेटा, इसको आप पॉलिनिया भी लिख सकते हो। वी कैन राइट इट सिंपली हियर पॉलिनिया। तो कैलोट्रोपिस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एक स्पेशल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरे हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनिया। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे हेटेरोस्टाइली। जैसा आपको बताया था, ये दैट इज हेटेरोस्टाइली। इट सजेस्ट द नेम
नाम क्या कहता है? हेटेरो मींस द डिफरेंट, स्टाइलिंग मींस द स्टाइल। यहाँ पे जो स्टाइल की लेंथ है वो अलग अलग है। सो वी कैन राइट द लेंथ ऑफ स्टाइल इज different. We will consider two important example. First, primrose and second, oxalis. दो एग्जाम्पल बेटा हम यहां से लेते हैं, प्राइमरोज का और ऑक्सैलिस का। ऑक्सैलिस में 3 काइंड ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ फ्लावर, और यहाँ पे प्राइमरोज में क्या होते हैं? 2 काइंड्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, कैसे? पहली पॉसिबिलिटी, ये बेटा आपका क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? यहां पे क्या हो? पॉलन ग्रेन्स जहां पे बनने वाले हैं, एंथर और फिलामेंट किससे? आपके ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल से क्या है? छोटा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन। अब पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे क्या देखिए, अगर कोई भी एजेंसी आई, मान के चलते हैं विंड, तो पॉलन ग्रेन्स आगे की तरफ कैरी हो जाएंगे। यहाँ पे वही कंडीशन है, लैंड नहीं कर पाएंगे स्टिग्मा पे, क्योंकि स्टिग्मा ऊपर की तरफ है और पॉलन ग्रेन्स कहाँ? आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ना तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा पे, और ना तो यहाँ पे। तो इस कंडीशन में उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोस्टाइली। देखिए यहाँ पे लेंथ क्या है? सबकी अलग अलग है। तो इन दोनों को हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इस कंडीशन इज नोन एज पिन फ्लावर। इस कंडीशन को हम कहेंगे पिन फ्लावर, और इसे क्या कहेंगे? थ्रम फ्लावर। और यहां पे बेटा क्या होता है? 3 तरह के जो होते हैं, पहला पिन फ्लावर, दूसरा थ्रम फ्लावर, और तीसरा जो बनेगा बेटा वो नॉर्मल फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मींस डिफरेंट, स्टाइली मींस दैट स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल की जो लेंथ है अलग अलग है, बहुत ही सिंपल है। 2 एग्जांपल आपको इवनिंग प्राइमरोज और ऑक्सैलिस का याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दैट वाज आई थिंक 6th, सेल्फ incompatibility. Self incompatibility. What is the meaning of this? Pollen grains of same plant will not germinate on स्टिग्मा। यानी जो पॉलन ग्रेन्स है सेम प्लांट के बेटा, वो क्या करेंगे? अगर स्टिग्मा पे गिर भी गए या लैंड भी हो गए, तो वहां पे क्या करेंगे? जर्मिनेट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल, टोबैको एंड पोटैटो। तो टोबैको और पोटैटो में क्या है? अगर अपना ही पॉलन ग्रेन्स लैंड कर रहा है स्टिग्मा पे, तो वो क्या करेगा? जर्मिनेट नहीं होगा। एक लास्ट देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्री पोटेंसी। यहां पे हम एग्जांपल देखें किसका? पीच। पीच में देख लेते हैं, और वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल। एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहां पे मान के चलते हैं ये स्टिग्मा थी। ठीक है, यहां पे 2 तरह के पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन नंबर 1 एंड पॉलन ग्रेन नंबर 2। ओके, लेट्स मेक द एग्जांपल आल्सो। तो ये दोनों पॉलन ग्रेन्स कहां है? लैंड कर रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन्स क्या है? सेम प्लांट का है, और ये पॉलन ग्रेन क्या है? डिफरेंट प्लांट का है। सो प्रीपोटेंसी क्या कहती है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट विल जर्मिनेट फर्स्ट। अगर 2 तरह के पॉलन लैंड कर गए स्टिग्मा पे, एक उसी प्लांट का और दूसरा डिफरेंट प्लांट का, तो जो डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन्स है वो पहले डेवलप करेंगे, और सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन्स डेवलप नहीं करेंगे। यानी ये वाला पॉलन ग्रेन डेवलप कर जाएगा और ये वाला पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर मान के चलते हैं जो डिफरेंट
प्लांट का पॉलन ग्रेन्स था इसमें कुछ दिक्कत थी या कमी थी, वो जर्मिनेट नहीं हो पाया, उसके बाद उस कंडीशन में सेम प्लांट का जर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन? प्रीपोटेंस। ये गारंटी होती है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। कहाँ? वो चाहे डिफरेंट प्लांट का क्या हो, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करे या सेम प्लांट का, लेकिन वरीयता किसको मिलेगी, प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जो डिफरेंट प्लांट का है। इफ pollen grains of other plant falls on stigma, it will germinate first. It will germinate first. ठीक है, यानी अगर pollen grain अदर प्लांट का गिर गया कहाँ? स्टिग्मा पे, तो ये पहले जर्मिनेट करेगा इंस्टेड ऑफ pollen grain of सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट के pollen grain को छोड़कर अगर कोई और pollen grain वहां पे आके लैंड हो रहा है तो वो पहले जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे पहला पॉइंट। ओके, सो योर फर्स्ट पॉइंट ब्रिंग्स मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, hence help the plant in better survival। यानी बेटा यहाँ पे क्या होती है, वेरिएशन ज्यादा होता है क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर क्या है, कंबाइन कर रहे हैं। दो डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जो कि सेम फैमिली के हैं। तो यहाँ पे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन की वजह से एडाप्टेशन ज्यादा होगा, और जब एडाप्टेशन होगा तो बेटर सर्वाइवल होगा। दूसरा, प्रोड्यूस हेल्दी, और वी कैन राइट अ टेक्निकल टर्म वायबल ऑफ स्प्रिंग, यानी यहाँ पे क्या होता है, हेल्दी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, प्लांट में कोई डिजीज थी, जिस प्लांट में डिजीज थी उसी प्लांट में पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो वो डिजीज कहाँ, ऑफ स्प्रिंग में भी पहुंच गई। बट हियर because two plants combining their characteristics, so it may be possible that disease free plants can be obtained. Okay, now we will discuss disadvantages. Okay, so आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एजेंसी की जरूरत होती है। so wastage of pollen grains during ट्रांसफर, चूंकि विंड, वाटर या एनिमल से pollen grains ट्रांसफर हो रहे हैं, इस वजह से ज्यादा pollen grains वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा, नीड एजेंसीज फॉर pollen ट्रांसफर, बिना एजेंसी के pollen ट्रांसफर नहीं होगा। सो ये दोनों डिसएडवांटेज है, यानी वेस्टेज होता है pollen grains का, और इसको एजेंसी की जरूरत पड़ जाती है बेटा pollen grains के ट्रांसफर के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ह्यूमिड कंडीशन, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। And one more important thing in this topic, we have covered adaptation for cross pollination as well as disadvantage and advantage of cross pollination. So that is all about for today. Like the video, subscribe the channel and share with your friends. So have a nice day and keep smiling. Jai Hind.